Good morning, students. I welcome you all in my first video related to paper partial differential equations. We shall begin our study by learning some concepts related to partial differentiation which will be useful in our present syllabus. First of all, definition of partial differentiation. Partial derivatives are the derivatives obtained by differentiating a function in which all except one of the independent variables are held constant and differentiation is performed with respect to the one. In this topic, we will take minimum two independent variables. When we study ordinary differentiation, note that there always only one dependent variable and one independent variable. But when we study about partial derivative, then that function contains minimum two or more than two independent variables. If we differentiate function with respect to one variable, then we consider the other variable as a constant. Let here we take u as a function of xy, be a continuous function of two independent variable x and y. Let y be held constant. With this particular y, u फंक्शन ऑफ एक्स वाई, अगर हम y को कांस्टेंट ले लेंगे तो वो एक सिंगल वेरिएबल x का फंक्शन हो जाएगा. अब अगर आप इस फंक्शन में y को कांस्टेंट ले रहे हैं और ये सिंगल वेरिएबल x का फंक्शन है, तो आप इस फंक्शन का इजिली विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं. इस डेरिवेटिव को आप पार्शियल डेरिवेटिव कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. These are the notation. Either you can use curly u by curly x. In case of differentiation, we will use du by dx, but in case of partial differentiation, we will use curl. Or you can use this function curly f by curly x. We can also mention the variables x and y with f, or we can write x at the base of x. You can use any of these notation. Similarly, if we take x as constant, then u function of xy become function of y only. Then you can differentiate simply with respect to y by using all formula and methods of ordinary derivative. It can be denoted as this. Curly u by curly x and curly u by curly y are first order partial derivatives. Since these partial derivatives are also function of xy, therefore we can further find partial derivatives of these derivatives. The four derivatives thus obtained called the सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. अब आप क्या क्या कर सकते हैं जरा ध्यान से नोट कीजिए. करली यू बाय करली एक्स, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल का फंक्शन है, तो आप इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी. तो देखो ये करली यू बाय करली एक्स का अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो नोटेशन ये है, और विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे तो ये नोटेशन हो गई. फिर ऐसे ही करली यू बाय करली वाई भी एक्स और वाई दोनों वेरिएबल का फंक्शन है, तो अगर इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी. अब इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करके हम कैसे लिखेंगे. करली और करली दो बार अप्लाई हो गया, तो ये करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही जैसे आप डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ये बन गया करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर. बट these two concepts are new here. What it means, क्या डिफरेंस है इन दोनों में. यहाँ u का पहले हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, फिर जो आंसर आया उसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू y. यहाँ विद रिस्पेक्ट टू y आपने u का डेरिवेटिव पहले किया है, जो उसका आंसर आया है फिर उसका विद रिस्पेक्ट टू x किया है.
इनको हमने बिल्कुल डिफरेंट लिखा है, क्यों? इन ऑल केसेस ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल नहीं होते हैं। u पर कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो तभी ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स सेम होते हैं। These are some other different notations you can study by yourself. Next definition is total differential. Let u is a function of xy is differentiable, then first total differential or differential of u is defined by this formula. Du is equal to partial derivative of u with respect to x multiply dx, partial derivative of u with respect to y multiply by dy. You can also write it as we have taken u common and this one. In general, if you apply second total differential, then its general formula is square of this expression in bracket multiplied by u. स्क्वायर कैसे निकालेंगे? करली बाय करली एक्स ए प्लस बी के होल स्क्वायर टाइप में ही फॉर्मूला लगेगा ये आपका। ए का स्क्वायर यानी कि करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का होल स्क्वायर। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर इंटू डी वाई का होल स्क्वायर। curly by curly y and curly by curly x, both of these are operators. That wise they are not numbers, so you cannot simply square them. करली ऑपरेटर्स का जब आप स्क्वायर करते हैं तो उसका एक्चुअल में मीनिंग है कि उस फंक्शन पर वो ऑपरेटर 2 टाइम्स अप्लाई हो रहा है, कंपोजिशन। तो कंपोजिशन को लिखने का हर ऑपरेटर की जो प्रॉपर नोटेशन है वो उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। यहाँ क्या आ गया आपका 2 इंटू दिस एक्सप्रेशन इंटू दिस, तो dx इंटू dy, करली x बाय करली x एंड करली बाय करली y की कंपोजिशन करली स्क्वायर u बाय करली x करली y। यहाँ ये एक्सप्रेशन कैसे आया? In case of total differentiable, I have supposed that u is differentiable. If u is differentiable, then the two partial derivatives that I discussed above, these two are always same. So it is upon you, you can use this notation or this notation. That wise, here consider both equal and multiply it by 2. So this is a simple trick to learn about finding any order total differential. In general formula, it is this. Next definition, composite function and their partial derivative. If u is a composite function of t, क्या मीनिंग होता है composite function का? कि u तो फंक्शन है x y का, लेकिन x और y दोनों फंक्शन है t के। और अगर आपको ये कहा जाए कि u का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा आपका फॉर्मूला? ध्यान से समझिए इसको। आपको, क्योंकि u जो है t का एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है कंपोजिट, इसलिए मैं यहाँ वैल्यू d यूज कर रही हूँ, कर्ल नहीं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पार्शियल और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जब कंबाइंड यूज होते हैं तो जहां पर कोई वेरिएबल अगर सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है तो वहां नोटेशन आप डी यूज करेंगे। अगर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है तो वैल्यू आप नोटेशन आप कर्ली यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर u जो कंपोजिट फंक्शन है t का, एक सिंगल वेरिएबल है इसलिए मैंने du बाई dt यूज करा, लेकिन एक्चुअली u तो फंक्शन है एक्स वाई का। तो आपने u का जो डेरिवेटिव करना है, देखो मैंने कैसे याद रखेंगे इस फॉर्मूले का, u का पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, अब t तक जाना है तो x का विद रिस्पेक्ट टू t करना होगा, लेकिन x जो है फंक्शन t का वो एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा dx बाई dt। फिर अगेन प्लस का साइन, u का विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे? y के, फिर y फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल t का, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया dy बाई dt। Here du by dt is called total derivative of u with respect to t. If in above condition I change from u as a composite function of t, I take here u is a composite function of r and s. It means
u फंक्शन है एक्स वाई का, x भी आर एस का फंक्शन है, y भी आर एस का फंक्शन है। तो यहाँ कोई भी ऐसा फंक्शन यूज नहीं हो रहा है जो किसी एक सिंगल वेरिएबल का हो। तो इसका जब हम फॉर्मूला लिखेंगे कहीं पे भी d का यूज नहीं करेंगे, हर जगह कर्ल का यूज करेंगे। अब u का आपको डेरिवेटिव करना है आर के भी विद रिस्पेक्ट टू और एस के भी विद रिस्पेक्ट टू। तो फॉर्मूला तो आपका यही सेम रहेगा, बस क्या चेंज हो जाएगा, जहां जहां मैंने डी लिखा है वहां पर आपका कर्ल आ जाएगा। देखो बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। जब u का विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो क्या होगा, u फंक्शन तो x का है तो u का विद रिस्पेक्ट टू x करा और x का विद रिस्पेक्ट टू r। फिर u का विद रिस्पेक्ट टू y किया और y का विद रिस्पेक्ट टू r। बिल्कुल सिमिलरली r इज रिप्लेस्ड बाय s। Next definition is about differential equation. इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे? अगर मैं जनरल वर्ड्स में बात करूं तो जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो जाएंगे वो इक्वेशन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अभी जब हम सिंपल इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ डेरिवेटिव्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की हो गई, क्यों? क्योंकि आपके डेरिवेटिव्स दो टाइप के होते हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो आपकी क्या हो जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स का केस कब होता है, जब आपका सिंगल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। और पार्शियल डेरिवेटिव्स कब कंसीडर करते हैं हम, जब आपके मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ए डिफरेंशियल इक्वेशन involving derivatives with respect to a single independent variable is called an ordinary differential equation. First of all, we also define order and degree of a general equation so that we can use this concept for partial differential equations also. Order. The order of the highest order derivative involved in a differential equation is called the order of the differential equation. क्या होता है differential equation? अभी मैं जनरल बात कर रही हूँ कि किसी भी differential equation में जो भी derivatives involve हो रहे हैं उनमें से जो derivative सबसे highest order का होगा उसी का ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर है, तो आपने सबसे पहले यही चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव आ रहा है वो कौन सा है, जो उसका ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिग्री। डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है वो इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में स्लाइटली चेंज होता है। द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव विच अकर्स इन इट। किसकी हाईएस्ट पावर निकालनी है आपने, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट किया था, आपको उसकी पावर चेक करनी है। लेकिन सम कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होने के बाद आप पावर चेक करोगे। वो क्या? आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस as far as the derivatives are concerned। क्या मीनिंग है इसका, कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, रेडिकल्स मतलब फ्रैक्शनल पावर्स और नेगेटिव पावर्स आपकी इक्वेशन में नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी किसी भी डेरिवेटिव की पावर फ्रैक्शनल, मतलब कि मान लो मैं ये कहूँ कि किसी डेरिवेटिव की पावर 1/2 है तो आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। किसी डेरिवेटिव की पावर -5 है तो उस पावर को दूसरी साइड ले जाओ। तो सबसे पहले आपने नेगेटिव पावर्स और फ्रैक्शनल पावर्स को आपने रिमूव करना है। उनको रिमूव करने के बाद आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर चेक करनी है। Note that the above definition of degree
does not require variables x, t, u, whichever notation you will use to be free from radicals. An example is given here. Here, power of x is 1 by 2. You should note that कि हमें सिर्फ जो रेडिकल्स और नेगेटिव पावर्स हैं वो सिर्फ आपने डेरिवेटिव्स के रिमूव करनी है. वेरिएबल्स चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो, अगर उनकी पावर रेडिकल्स में है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब यहाँ देखें तो जो सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव है वो आपका फर्स्ट है, इसलिए ऑर्डर 1 हो गया. फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री हो गई 2. नाउ we will come to our syllabus. First of all, now we define partial differential equation. A differential equation involving partial derivatives of dependent variable one or more with respect to two or more independent variables is called partial differential equation. अब क्या डेफिनेशन है इसकी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स तो हैं ही, लेकिन साथ ही आपकी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पर भी कुछ कंडीशंस हैं. सबसे मेन कंडीशन तो ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 होना चाहिए. डिपेंडेंट वेरिएबल भी मोर देन 1 हो सकता है, नॉट कंपल्सरी. Or you can explain it as an equation containing an unknown function of two or more variables and its partial derivative with respect to these variables is called a partial differential equation. अब in case of two variables अगर आपको एग्जांपल लिखना है किसी partial differential equation का, तो I have supposed z as a dependent variable and x and y as a independent variable. तो जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तो ये तीनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, साथ में z के विद रिस्पेक्ट टू x एंड y पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो जाएंगे. तो ये देखो मैंने z का विद रिस्पेक्ट टू x y फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लिख दिया, तीनों आपके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लिख दिया, एंड सो ऑन. कितने और आ सकते हैं? जितना आपका डिफरेंशियल का ऑर्डर है, कोई इस पे कंडीशन नहीं है. नेक्स्ट डेफिनेशन. Note, in a partial differential equation there are more than one independent variable. Now I explain about some standard notation which I will use throughout this paper. For curly z by curly x, we will use the notation small p. Curly z by curly y, small q. Curly square z by curly x square, small r. Curly square z, curly x, curly y, small s. Curly square z by curly y square, small t. अब आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? देखो p, q, r, s, t सीक्वेंस में है. अब आपने पार्शियल डेरिवेटिव भी अपने सीक्वेंस में लिख दिए. z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सबसे पहले, z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फिर z का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, z का मिक्स x एंड y और z का विद रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर. If in your book anywhere you found these notation, these means these partial derivatives. Now we define order of a partial differential equation. Order of a partial differential equation is very much similar to order of differential equation. The order of a partial differential equation is order of the highest order partial derivative occurring in it. क्या ऐड कर दिया? बस जो ऑर्डर की थी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था. अब यहाँ हम यूज कर रहे हैं हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. सिंपली डिग्री भी सेम कि डिग्री ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is the greatest exponent, means power of highest order partial derivatives occurring in it after making it free from radicals and fractions as far as derivatives are concerned. कि जब आप partial differential equation में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है आपको उसकी पावर चेक करनी है, बट फर्स्ट कंडीशन है कि सभी डेरिवेटिव्स में से किसी की भी पावर फ्रैक्शनल पावर
और नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए. Let us consider a few examples. What is the order of highest derivative here? 1, and there is no negative and fractional power, and power of both these derivative is also 1, so here order and degree both are 1. In this case, highest order derivative is first derivative, therefore order 1, non-negative and exponent power, highest power of this derivative is 2, that implies degree 2. You can revise all these examples. Linear and non-linear partial differential equation. A partial differential equation is said to be linear. Linear का क्या होता है? जब आप linear equation पढ़ते हैं तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है. बिल्कुल सेम यहाँ है. अब यहाँ पर क्या कंडीशन है? थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल partial derivatives occur only in first degree and are not multiplied together. यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर कोई कंडीशन नहीं है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोई भी पावर आ सकती है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी भी डेरिवेटिव या डिपेंडेंट वेरिएबल के मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हैं. उससे लीनियर के कॉन्सेप्ट का यहाँ कोई रिलेशन नहीं है. बस आपने क्या देखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई पावर नहीं होनी चाहिए, किसी भी पार्शियल डेरिवेटिव की कोई पावर नहीं होनी चाहिए, कोई भी दो डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई में नहीं लिखने हैं, कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल और कोई पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में नहीं लिखने हैं. अगर इक्वेशन लीनियर है तो ठीक, अदरवाइज वो क्या कहलाएगी? नॉन लीनियर. These are some important results which I have selected from the paper Solid Geometry. Some basic standard equations related to sphere, cone, plane. Let us have a quick review over that. This is the equation of plane in normal form. This is also another equation of plane. This is equation of plane in intercept form. This is equation of sphere where ABC center है, R उसकी क्या है? रेडियस है. This is general equation of sphere. Here this is formula for center and this is for radius. This is equation of cone whose vertex at the origin. This is general equation of cone vertex at the origin. This is equation of right circular cone, equation of ellipsoid. Why I have mentioned them here? Because during solution of formation of partial differential equation, in some question we will use these equations. हाँ जी, जो अब आपका मेन फर्स्ट टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करें. Origin of partial differential equation. We shall now examine the interesting question of how partial differential equation arise. We show that such equations can be formed by elimination of arbitrary constant or arbitrary functions. कि आप अब इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर, अभी आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिफाइन कर लिए. अब हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को इतना डीप स्टडी कर रहे हैं तो एक्चुअल किस सिचुएशंस में क्या कंडीशंस हैं जिनसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस की जा सकती है. हम मेनली 2 टाइप के मेथड्स पढ़ेंगे. फर्स्ट मेथड में हम जो भी आपकी इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको रिमूव करेंगे, एलिमिनेट करेंगे और उसकी हेल्प से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे. दूसरा मेथड होगा आर्बिट्रेरी फंक्शंस को रिमूव करना. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट derivation of a partial differential equation. Note that PDE means I use it as a shortcut for partial differential equation by the elimination of arbitrary constant. अब मेथड को मैं ब्रीफ कर रही हूं कि आपने एक्चुअली में
जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं तो क्या करना है। हमारे पास एक्स वाई जेड, जेड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ए और बी ये आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आप सपोज करो आपको एक्स वाई जेड ए और बी की फॉर्म में एनी फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन में कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ये सिंपल एक रिलेशन है बिटवीन एक्स वाई जेड ए एंड बी। कैसे इस इक्वेशन की फॉर्म होगी, कौन सा फंक्शन होगा, इस पे कोई कंडीशन नहीं है। आपने जितने भी टाइप के फंक्शंस पढ़े हुए हैं कोई भी फंक्शन यहाँ यूज हो सकता है। अब आपने क्वेश्चन जब सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चन कि आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करनी है इससे, और हम मेथड पढ़ रहे हैं बाय इलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कौन कौन से आपके, स्मॉल a एंड b। अब आपको इन दोनों को एलिमिनेट करते हुए आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो जो आपका स्टेप फर्स्ट होगा हर क्वेश्चन में, जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है आपने उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या कर लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव। अब कैसे करोगे आप पार्शियल डेरिवेटिव, जरा ध्यान से नोट करो। जो स्मॉल ए और स्मॉल बी तो कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट कहीं डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज लिखा जाएगा, और सेपरेट एक टर्म है तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। जब आप पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वाई को भी एज ए क्या लेकर चलेंगे, कांस्टेंट। ओके, तो जहां पर एक्स है, अब देखो मैं क्या लिख रही हूं कि पूरे एक्सप्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम क्या कर देते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, अब दूसरी टर्म मैंने क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ z भी तो x का ही फंक्शन है, x और y दोनों का, तो z का तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया जा सकता है, लेकिन f में z भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, f का विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव करूंगी और फिर z का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, नेक्स्ट क्या लिखे, करली जेड बाय करली एक्स के लिए क्या नोटेशन पढ़ी है आपने, स्मॉल p। फॉर सिंप्लीफिकेशन वी हैव राइट इट एज, अदरवाइज इट इज नॉट कंपल्सरी। इफ यू अगेन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू y, देन स्मॉल x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो आप क्या करेंगे, यहीं से अगर मैं एक बार रिवाइज कराऊं तो आप क्या लिखोगे, करली f बाय करली y, यानी कि पूरे एक्सप्रेशन में जो भी आपको कंडीशन गिवन है आप उस पूरी कंडीशन का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे। जो टर्म्स z में इन्वॉल्व हैं उन टर्म्स का विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे और मल्टीप्लाई में z का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। देखो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, करली f बाय करली y, करली f बाय करली z, करली z बाय करली y। करली z बाय करली y के लिए नोटेशन थी आपके पास q। ठीक है, अब स्टेप आपका 1 हो गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, स्टेप 2 हो गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब नेक्स्ट आपको काम करना है, अब क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव्स में f में a और b भी इन्वॉल्व हैं तो इन एक्सप्रेशंस में कहीं ना कहीं आपके वे कॉन्स्टेंट्स भी आएंगे। अब आपको इन्हें एलिमिनेट करना है। इस टाइप की जब कंडीशंस होती हैं और किसी वेरिएबल को जब एलिमिनेट करना होता है तो आपके पास कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड मेथड नहीं होता। अकॉर्डिंग टू फंक्शन कंडीशन ये आपको क्वेश्चन में ही डिसाइड करना होगा कि आप ये कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस अभी हम क्वेश्चन से एक्सप्लेन करेंगे। अभी एक बार थोड़ा सा मेथड को और प्रॉपर डिस्कस कर लेते हैं। अब आपने कौन कौन सी इक्वेशन है, एक आपकी इक्वेशन नंबर 1 है जो आपको गिवन फंक्शन था, एक इक्वेशन नंबर 2 है जो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके आई, एक इक्वेशन नंबर 3 है जो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करके आई। तो सबसे पहले तो आपने क्या ट्राई करना है, क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड को यूज करके अगर आप a और b को इल्यूमिनेट कर देंगे तो आपके पास कौन कौन से वेरिएबल्स आ जाएंगे, ए और बी की जगह ये आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर ऐसी कोई इक्वेशन आ जाती है तो वो आपकी पार्शियल डेरिवेशन डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई फर्स्ट ऑर्डर की। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनमें आप एक डेरिवेटिव कैलकुलेट करके
आपकी इक्वेशन इस टाइप की आती है कि आप उनको इजिली इलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स भी निकालने पड़ेंगे। अगर आप फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ही करते हैं तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की आ रही है। अगर आप क्वेश्चन में हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके आंसर में आएगी उसका ऑर्डर भी 1 से ज्यादा आएगा। अब हम यहाँ पर कुछ डिफरेंट केसेस डिस्कस करते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वी विल डिस्कस हियर 3 केसेस। या तो क्या होगा, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कम होंगे या इक्वल होंगे या ज्यादा होंगे। अब देखो यहाँ पर हमने क्या मेंशन किया है कि अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से लेस है तो elimination of arbitrary constants usually give rise to more than one partial differential equation of order 1। अब अगर आपकी एक से ज्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, मीनिंग आपका आंसर यूनिक नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से आपके डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, हर आंसर ठीक है लेकिन आपका आंसर यूनिक नहीं होगा। नेक्स्ट केस, अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम है तो एलिमिनेशन से आपकी यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, बट नॉट ऑलवेज। जैसे मैंने अभी बताया था कि कई बार ऐसा क्या होता है कि सिर्फ फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव से कांस्टेंट रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता। Sometimes it may not always be possible to eliminate the arbitrary constants from the given equation and its first order partial derivative। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे और एलिमिनेट करेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। तो हम कह रहे हैं कि तब जो आपकी हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन आएगी वो भी यूनिक नहीं होगी। अगर फर्स्ट ऑर्डर आएगी इस केस में तो वो यूनिक होगी, सबका आंसर कर किसी भी मेथड से निकालो सेम आएगा। अगर इक्वेशन मोर देन वन ऑर्डर की आ रही है तो उसका आंसर यूनिक नहीं होगा। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। केस थर्ड, अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज्यादा हो जाते हैं तो आपकी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगी। और आपने बस एक बात याद रखनी है कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर की आएगी वो कभी भी यूनिक नहीं होगी। तो आपने अपना सिर्फ आंसर मैच नहीं करना है, आपने अपने कॉन्सेप्ट को समझना है और क्वेश्चंस को। नाउ आई कम टू सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, now we will discuss a few examples related to formation of partial differential equation by elimination of arbitrary constant. Now in the first example, the given function is this. Here z is equal to ax plus by plus a square plus b square. Here z is dependent variable, x and y are independent variable, a and b are arbitrary constant. Note here that number of independent variables is 2 and number of arbitrary constants is also 2. So it is case second. In case second, in the method above discussed, we have if number of arbitrary constant and number of independent variables are equal, first of all try to remove these constants from the equation find by differentiating partially with respect to x and y. If these arbitrary constants can be removed by first partial derivatives, then the equation obtained will be of order
1 and unique. If because of given function we are not able to remove this constants by using only first order partial derivatives, then the equation we will find will be of higher order than 1 and answer will be not unique in that case. Now, first of all, we will partially derivative is function with respect to x and y. Now, partial derivative of z with respect to x is curly z by curly x. Ax का partial derivative with respect to x a, by a square b square are constant. Now, if we differentiate it with respect to y, what we will get? Curly z by curly y. Then ax become constant, so its derivative is 0 and it is b. So, these partial derivatives are this. Then it is clear that we will get values of a and b as a is curly z by curly x and b is curly z by curly y. Put value of a and b from second and third in first, we will get the required differential equation of order 1. No discussion about degree. वैसे इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, लेकिन इस मेथड में डिग्री पर कोई कंडीशन नहीं है. Now come to our example number 2. Here also x and y are independent variable. H, k and lambda are arbitrary constant. So it is not case 2, it is actually case number 3. Here, this is the partial differential equation. First of all, we will partially differentiate it with respect to x. अब देखो फर्स्ट टर्म का हम डेरिवेटिव करते हैं, पावर 2 आगे x माइनस एच की पावर 1 इंटू में x का डेरिवेटिव 1, ये कांस्टेंट है इसलिए 0. 2z का डेरिवेटिव बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x में क्या लिखते थे? 2y इंटू dy बाय dx. सेम वैसे ही 2z इंटू करली z बाय करली x. सिमिलरली y का डेरिवेटिव, यहाँ से x माइनस एच की वैल्यू आ गई, यहाँ से y माइनस के की वैल्यू आ गई. ये दोनों वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ से आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी. यहाँ पर सिर्फ इसने आपको h और k एलिमिनेट करने के लिए कहा है, इसलिए हमने लैम्डा को कांस्टेंट सपोज नहीं किया, इसीलिए सॉरी ये केस 2 ही है. नेक्स्ट आपका एग्जांपल नंबर 3. Find a partial differential equation by eliminating a, b, c, and this is the differential given equation. Note here that number of arbitrary constant is 3 and number of independent variable is 2. So it is case 3. So first of all differentiate it with respect to x. क्या करोगे? x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 by a स्क्वायर कांस्टेंट एज इट इज. जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो इसका 0, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z बाय स्क्वायर एज इट इज करली z बाय करली x. अब अगर इसी सिमिलर वे से मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करूं तो क्या आएगा? 2y बाय b स्क्वायर, 2z बाय c स्क्वायर इंटू करली z बाय करली y इज इक्वल टू 0. Okay. Now, using these two equations, it is clear that we cannot remove the arbitrary constants a and c. So, what we will do, we will again differentiate it with respect to x and y. This is the equation of partial differentiation with respect to x. हमने एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई कर दिया. दिस इज द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y. अब आप क्या कर रहे हैं? सेकेंड डेरिवेटिव इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव, थर्ड का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव. अब क्योंकि यहाँ पर आपकी इक्वेशन हायर देन 1 ऑर्डर की आएगी, तो कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि आपको सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है या थर्ड का विद रिस्पेक्ट टू y ही करना है. अकॉर्डिंग टू फंक्शन गिवन इन द क्वेश्चन, यू कैन चेंज
द मेथड यू विल यूज। अब हमने देखे इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव करा तो सी स्क्वायर एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, लेकिन जेड और करली जेड बाय करली एक्स दोनों ही एक्स का फंक्शन है, तो आप बाय प्रोडक्ट रूल इसका डेरिवेटिव करोगे। देखो जेड एज इट इज, करली जेड बाय करली एक्स का जब दोबारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। फिर ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर था ही, करली जेड बाय करली एक्स एज इट इज, जेड का किया, फिर करली जेड बाय करली एक्स आया, मैंने स्क्वायर लिख दिया। अब ये और दोनों इक्वेशन सिमिलर है, ऐसे ही आप इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव लिख सकते हैं। अभी भी आपका इजिली कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि पार्शियल डेरिवेटिव्स रिमूव हो रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है इससे सी स्क्वायर की वैल्यू निकालो बाकी अदर वेरिएबल्स की फॉर्म में और इसमें पुट कर दो, या आप यहां से सी स्क्वायर की वैल्यू निकालो और यहां पुट कर दो। हम ऐसे ही क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि जब यहां से सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर की फॉर्म में यहां पुट कर देंगे तो ए स्क्वायर कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा और आपकी इक्वेशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आएगी। ऐसे ही अगर आप यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर की फॉर्म में निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं तो आपका बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और इक्वेशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो जाएगी। एनी वन मेथड यू कैन फॉलो। देखो इधर क्या किया इसने, सेकंड से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, इक्वेशन में पुट करी, डिवाइड कर दिया ए स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर से, इक्वेशन आ गई। सिमिलरली थर्ड से सी स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर की फॉर्म में निकाली, इक्वेशन में पुट करी और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट मेथड पे आ जाओ। अब ये आपको फंक्शन गिवन है, यहाँ x और y की जगह वेरिएबल्स हो गए आपके x और t और आपके आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है लैम्डा और a। तो जो सबसे पहला स्टेप आपने करना है वो तो क्या करना है, जो भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपको गिवन है सबसे पहले उन दोनों के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए। तो करली जेड बाय करली एक्स करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में टर्म हो गई कांस्टेंट, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और एंगल मल्टीप्लाई में आ गया। जब करली जेड बाय करली टी करेंगे तो कोस लैम्डा एक्स कांस्टेंट ए कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है एक्सपोनेंशियल एज इट इज, और एंगल का जो मल्टीप्लाई में था वो यहाँ आ गया। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर एक बार देखें तो अभी आप इन दोनों इक्वेशन से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एंगल में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ लैम्डा है और यहाँ लैम्डा स्क्वायर है। अब अगर मैं इसका एक बार दोबारा डेरिवेटिव कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो साइन कॉस में बदल जाएगा और एक लैम्डा और आ जाएगा। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करती तो कॉस से साइन तो आ जाता लेकिन लैम्डा की पावर और इंक्रीज हो जाती, इसलिए हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। अब देखो जरा राइट हैंड साइड इन दोनों इक्वेशंस की सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो एक्चुअली में आपने मेथड क्या यूज करना है वो डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन में क्या फंक्शन यूज हो रहा है। अभी हमने कुछ टाइम पहले इसमें कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस फ्रॉम सॉलिड ज्योमेट्री की थी, वो इसीलिए कि कुछ क्वेश्चंस में जो आपको एक्स वाई जेड और आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में इक्वेशन है वो डायरेक्ट गिवन ना दे के आपको उससे रिलेटेड कर्व मेंशन किया जाता है। तो ऐसे केसेस में उस कर्व की उस कंडीशन में क्या इक्वेशन होगी ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर्स ऑफ फिक्स्ड रेडियस और सेंटर कहाँ है एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में जेड क्या होता है जीरो, तो हमने सेंटर ले लिया एच के और जीरो, आप ए बी और जीरो भी ले सकते हैं और रेडियस हमने ले ली आर। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी एग्जांपल सेकंड जो मैंने डिस्कस किया था उसके जैसा है, इसलिए इसको भी हम यहाँ स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस सेट ऑफ ऑल राइट सर्कुलर कोन्स whose एक्सिस कोइंसाइड विद जेड एक्सिस। उसी रिजल्ट्स में हमने डिस्कस किया था कि इस केस में कौन की इक्वेशन होती है ये सब आपका सॉलिड का पार्ट है जो आप पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब सबसे पहला स्टेप तो आपने कुछ नहीं सोचना, जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव्स कर दो। तो क्या करोगे, इसका 2x वाई स्क्वायर का 0, यहाँ पावर 2 आगे आ गई, z माइनस सी करली जेड बाय करली एक्स, तो टेंजेंट स्क्वायर अल्फा एज इट इज। सिमिलरली ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखो,
दोनों इक्वेशन में z माइनस सी और टेंजेंट स्क्वायर अल्फा सेम है, लेकिन ये एक्सप्रेशन सेम ना होने से आप इनको इक्वल नहीं रख सकते। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें इन दोनों टर्म्स को कैंसिल करना था, तो दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, डिवाइड। अब जो रिजल्टेंट इक्वेशन आई है वो आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल प्लेन्स which are at a constant distance a from the origin. From the results discussed above, the equation of plane is this, where L, M, N are direction cosines of normal from the origin to the plane, and the relation between L, M, N is this. अब यहाँ पर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हैं दो, लेकिन आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 4 हैं, एल, एम, एन, एन, ए। इसलिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से तीनों में से किसी एक की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर टू निकाल लेंगे और उसे गिवन इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे, ताकि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कम हो जाए। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर n की वैल्यू रिप्लेस कर दी, आपकी कंडीशन आ गई ये। बस फिर अभी भी वही सेम काम, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एल एक्स का तो हो गया एल। अब इस एक्सप्रेशन से परेशान नहीं होना है, कांस्टेंट है ये तो मल्टीप्लाई में एज इट इज चला, जेड का कर ली जेड, वाई कर ली एक्स, ए का 0। जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एम, ये एक्सप्रेशन एज इट इज कर ली जेड बाय कर ली वाई इक्वल्स टू 0। सॉल्व करके एल और एम की वैल्यू आ गई। लेकिन इस एक्सप्रेशन से आप एल और एम की वैल्यू भी एल और एम की फॉर्म में निकाल रहे हो, तो आपका एल और एम कैंसिल नहीं हो रहा। हम कुछ डिफरेंट टेक्निक यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा हम ध्यान से देखें, अंदर एल स्क्वायर और एम स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमने कैंसिल करने के लिए दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, उससे बाहर भी एल स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट हट के अंदर भी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर ऐड हो गया, ये वाली टर्म कॉमन आ गई, और ऐसे। अब हमने ब्रैकेट खोल दी, कैसे खोली हमने ब्रैकेट, 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो ये एज इट इज, और माइनस के एल स्क्वायर एम स्क्वायर एज इट इज। अब क्या करेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाली सारी टर्म्स एक साइड। अब जब ये एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड पर जाएगा और पूरे में से आप एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमन लोगे, तो लेफ्ट साइड वाली टर्म से 1 बचा और राइट साइड से ये एक्सप्रेशन आ गया, और ये आ गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास ये। सॉल्व करके हम 1 माइनस बोथ साइड कर देते हैं, तो 1 माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर की वैल्यू फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आ जाएगी। ये जो वैल्यू है अब हम कहाँ पुट करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में, ताकि एल और एम की वैल्यू फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आ जाए। देखो ये हमने एल और एम में पुट कर दी। अब ये वैल्यूज अगर हम गिवन इक्वेशन, कौन सी थी आपकी गिवन इक्वेशन, ये वाली जिसमें आपने एन को तो रिमूव कर ही दिया था, अगर आप इसमें पुट कर देते हैं। अब एक चीज और जरा पीछे से देखते हैं, यहां पर आपका एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस ए फ्रॉम द ओरिजिन, जो आपका इक्वेशन का डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो एक फिक्स्ड कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए इस केस में आपने जब n की वैल्यू l और m की फॉर्म में पुट कर दी थी, तो आपको रिमूव तो सिर्फ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को करना होता है। तो आपने यहाँ सिर्फ एल और एम की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दी, ये आपका आंसर हो गया है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो होता है जिसे आप क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। अब ये लास्ट एग्जांपल है, क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्लेन्स हैविंग इक्वल x एंड y इंटरसेप्ट। क्या इक्वेशन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में, x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c। x और y का इंटरसेप्ट सेम है, तो यहाँ पर हमने a और a यूज कर लिया। अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव करना है, इसे सिंप्लिसिटी के लिए इसको ऐसे लिखा है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है लिखने के लिए। करो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये क्या बन गया, 1 बाय a, यहाँ पर ये आपका 1 का तो 0, y बाय a का 0, और ये क्या हो गया माइनस के 1 बाय c एज इट इज, कर ली z बाय कर ली x, और सिमिलरली ये यहाँ। अब फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड
आपकी ये साइड सेम है आपका, देखो दोबारा से देखते हैं वहां से क्या आया है, दोनों वैल्यू 1 बाय ए की है। जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो आपकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम। इसलिए मैंने राइट हैंड साइड को सेम लिखा, 1/c माइनस 1/c कैंसिल, दिस इज द रिक्वायर्ड